And can I ask you, this is something a little personal. Is it true that your companies are worth 2,000 crores? Somewhere around that, हाँ, you're around the figure. 1950 crores. मतलब Hi, welcome to Practical ज्ञान सीजन 2 पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। आज का जो एपिसोड है ना, आई बिलीव कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स मेरे से एग्री करेंगे इस बात से जब मैं कहूँगा कि हम सब ने बचपन में हमेशा एक बात सोची हुई कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे या जब हम अमीर हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं इसी बात पे एक बात बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं अपनी बहन से बात करता था कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना दीदी, तो हम ना एक वाटर बेड लेंगे, हम ये वाली गाड़ी लेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he has almost everything. He is somebody who is passed out from one of the best schools across the world. He has been a student of London School of Economics. He is an entrepreneur and he is a good boy millionaire. Please welcome and give a huge round of applause for Himanshu Pasi. Thank you for having me here. So we have a lot of questions for you. But before we start with anything else, I want to ask you one thing which I was very curious और हम लोगों ने थोड़ी रिसर्च की थी आप पे, तो हमें पता लगा था. Is it true that you have sponsored IPL, Super Fight League and World Kabaddi Club? Yes, actually we did a few years back and Super Fight League जो स्टार वर्ल्ड पे आता था, then IPL की टीम राज कुंद्रा के साथ we sponsored and then World Kabaddi Cup होता था आज से कुछ 5-7 साल पहले इन पंजाब. So हाँ, हमने वो स्पॉन्सर किया था, so it was a good experience that time. And can I ask you, this is something a little personal. Is it true that your companies are worth 2,000 crores? Somewhere around that, हाँ, you're around the figure. 1950 crores. मतलब कह सकते हैं कि like we are into real estate and real estate is very capital intensive market. Okay. So हाँ, मतलब if you count the net worth of the company or personal assets and everything, so it is somewhere around this figure. Your family was never this rich. Your father worked really hard and उन्होंने खुद मेहनत करके किया है. Then you joined your father's business and then you have earned this much of money or earned this much of value. Yeah, that's true. Actually, my father is a self-made man and he has done like plenty of jobs. Okay. मतलब हर एक फील्ड में काम किया है, हर एक चीज में काम किया है एंड हाँ, मतलब जहाँ अभी हम हैं, मतलब दिस मिलेनियल टर्म एंटरप्रेन्योर. सो हमारे सबके फादर्स एंटरप्रेन्योर हैं जो जॉब नहीं करते. सो उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसको एस्टेब्लिश किया एंड इट टेक्स ऑल द सेल्फ एस्टीम एंड करेज एंड. बट ऐसा तो नहीं था कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर भी बहुत रिच थे, देन ग्रैंडफादर भी बहुत रिच थे, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, ये है कि मेरे फादर ने काफी टाइम से काम किया है, काफी फील्ड्स में काम किया है, तो he worked hard, really hard. Okay. And now he has built an empire. And मैं हूँ जो I'm the one who has to carry it forward and expand it more. So I've always seen you working very hard, yaar. And when I've used this term for you, good boy millionaire, there's a reason that I call you this. Do you remember the first time that we met? Yes, I remember. I was in my office and you just walked in wearing shorts. I think you come from gym or something. So I remember that. I think you were having a word with one of my colleague. I think. हाँ, तो उसके बाद हम मिले थे and since then we have a good association. I think. तो अच्छा सही है. कभी भी जब भी हमारी बात हुई है, you have been very grounded. I want to know the secret that how come you are so humble all the time. So अगर humble की बात करें, I think it's not about being humble. तो what I have learned from my family, my parents, के ठीक है, जो materialistic चीज़ें हैं आती हैं जाती हैं, doesn't matter. But जो matter करता है वो तुम्हारी upbringing and how you treat with people. And if you want to grow in business, जो मैंने सीखा है, किसी से बिगाड़ो मत, सबसे बना के रखो. क्या तूने मेरे से इसलिए दोस्ती की? नहीं, I be nice to everyone. I be nice to everyone. आज के जो पॉडकास्ट में जो हम लर्निंग देने वाले हैं आपको, वो ये नहीं होने वाला कि पैसे ज्यादा कैसे कमाएं, राइट? वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इधर उधर से पूछ सकते हो. और मेरा एक सिंपल एजेंडा है कि मैं एक बात बोलता हूँ कि ट्राई करते रहो, यू विल रीच वेयर एवर यू वांट टू. बेसिकली जितने लोग ये करते हैं ना, यार काश हमारे पास पैसा आ जाएगा, काश हमारे पास पैसा आ जाएगा, मैं सिर्फ उनसे आज बात करूंगा और उनको ये बताना चाहता हूँ कि with great money, with huge money comes great responsibilities, Obviously. great tensions
and a lot of pressure also. Am I right? डेफिनेटली 100%. जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि मतलब यार इसकी तो लाइफ सही है, ये तो अपना बॉस है, हाँ, इसके तो इतने एम्प्लॉयज होंगे, ये होगा वो होगा, ये लोग बाहर से देखते हैं, बाहर से जो लोग देखते हैं. और कई एम्प्लॉयज गिव अप कर देते हैं, यार मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं तो खुद का बॉस बनूंगा, आई विल स्टार्ट समथिंग, आई विल बी. एब्सोल्युटली ट्रू. ये बात उन लोगों के लिए है जिनके हर सैटरडे हर फ्राइडे रात को ये आता है, यार अब से ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा. हाँ. सो इसमें ये है, अगर मेरे बिजनेस की स्ट्रेंथ, मेरे एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ अगर 250 है, तो मेरे 250 बॉसेज हैं. ओके. मेरा एक बॉस नहीं है, मैं 250 फैमिलीज को फीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. मेरे को उनका ध्यान रखना है. अगर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, अपनी कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ, तो मेरे अंडर जो 250 फैमिलीज हैं वो इफेक्ट होंगी उस चीज से. अगर उनमें से कोई कुछ गलत कर रहा है, वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा. फिर मेरे पास आई हैड टू सेटिस्फाई सम पीपल. आई हैव 250 बॉसेस ऑन मी. ओके, मैंने इस वे से कभी नहीं सोचा था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो ये सोचते हैं यार हमारा एक बॉस है, ठीक है, और मुझे इस बंदे को खुश करना है. बट एक्चुअली बीइंग आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, तो बट मैंने भी कभी ऐसी वाली साइड से नहीं सोचा दैट आई हैव टू मेक 30 bosses happy. Exactly. If I have 30 employees, okay, so that's even more pressure. Exactly, that's more pressure. और लोगों को लगता है नहीं यार इसकी तो बॉसी लाइफ है, ये तो अपना ऑफिस जाके चेयर पे बैठता होगा. बट ऐसा कुछ नहीं है. You have to make very tough decision throughout your life in your business. And काफी चीजें मैटर करती हैं, काफी सोचना पड़ता है इस चीज के बारे में. One advice that you would like to give it to new entrepreneurs. So people who are looking to start something, so I would suggest them के just don't give up in the middle. Complete the race. Race finish करो. It will take time. 5 महीने 6 महीने नहीं हो रहा है, करते रहो. एंड कई लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट किया, साथ साथ प्लान बी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पुरानी थ्योरी है, ऑलवेज हैव अ प्लान बी. मेरे अकॉर्डिंग यू शुड नेवर हैव अ प्लान बी. अगर आपके प्लान बी होगा ना, यू हैव समथिंग टू ले बैक ऑन. तो आप थोड़े ना उसको वो हो जाओगे, नहीं यार प्लान ए पे 100% नहीं दे पाओगे. प्लान ए पे 100% नहीं दोगे, आपको लगेगा चल ठीक है ये नहीं चलेगा तो वो चला लूंगा. बट अगर इफ यू डोंट हैव अ प्लान बी, देन आई थिंक यू विल मेक इट थ्रू. यार प्लान ए को सक्सेस करने में ठीक है, हो जाएगा. बहुत सारे मैंने देखा है कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म भी सोचते हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर. वो ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे पास हम ना 3 months का वर्थ इन्वेंट्री या कैपिटल रख लेते हैं. एक महीने नहीं चलेगा, दूसरे महीने थोड़ा चलने लग जाएगा, तीसरे महीने चल पड़ेगा, फिर चौथे महीने से हम पैसे कमाने लग जाएंगे. द प्रॉब्लम कम्स 4th 5th मंथ तक भी वो पैसे कमाते नहीं है, एंड देन दे फील लाइक गिविंग अप कि अब तो ये हो नहीं रहा, चलो कुछ और कर लेते हैं. मूवीज में दिखाते हैं ना कि हाँ उसने ये स्टार्ट किया, नहीं किया, उसका एकदम से क्लिक हुआ, वो मिलियनर बन गया. वो चीज छोड़ दो. इट विल टेक टाइम लगेगा, महीना 2 महीने साल, कईयों को कितने साल लग जाते हैं, बट ठीक है, पीपल सक्सीड. एंड आई बिलीव कि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी यू विल रीच देयर वेयरएवर यू वांट टू. आई वुड से कि जैसे शाहरुख खान का डायलॉग था मूवी का कि जौन सी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. तो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग दैट हैज अ डीप मीनिंग. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट्स वेरी ट्रू. मुझे लगता है कि अगर आप यू आर पॉजिटिव ना, और अगर आप अपने आसपास ही एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखोगे, exactly. तो वो चीजें अपने आप ही आपके पास आने लग जाती हैं. सो आई थिंक यू शुड बी पॉजिटिव इनफ. हाँ, अपने आइडिया में बिलीव रखो यार. मतलब आई थिंक जो स्टार्टअप वाला है ना, जिसने स्टार्टअप कुछ करना है, जो एंटरप्रेन्योर है, तो ही शुड बी अ डर्ट ईटर. मतलब कोई कीचड़ उछाले तो सामने खड़े हो जाओ, हाँ भाई उछाल. तो जब तुम कुछ स्टार्ट करोगे ना, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारी फैमिली तुम्हें क्वेश्चन करेगी कि क्यों कर रहे हो, जॉब करो, जॉब क्यों छोड़ दी. तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी. बट ये चीज़ों के बाद ऑब्वियसली यू विल सक्सीड. हर चीज़ एक प्राइस के साथ आती है. आई थिंक दैट इज द प्राइस यू हैव टू पे. यू शुड बी ready to make all those sacrifices. Exactly. Only then you will have the success. Exactly. ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम भी कम करो, मेहनत भी कम करो और उसके आपको सक्सेस भी ज्यादा मिल जाए. ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता. ये मूवीज में दिखाते हैं. तो आई थिंक उससे हमारे यंग स्टूडेंट जो यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफी इफेक्ट होते हैं कि यार इसने ये कर दिया, मैं भी ये करूंगा. बट ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू वर्क फॉर इट. The kind of status you have, do you think that people are very sweet to you because of your money? I won't deny this. Okay. But I think now things are about to get interesting, by the way. I won't deny it, but there are some people at some aspect they treat you good for money, but I think
people treat me good because I'm a good person यार. I have a good nature. हिमांशु कह रहे थे यार मैं अच्छा हूँ. मैं अच्छा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कुछ है तो नहीं है तो उसके लिए तुम्हें लोग ट्रीट कर रहे हैं अच्छा. ये चीजें तुम्हें कहीं पे ना कभी तुम्हें पता लग जाती हैं. कीप योर आईज एंड ईयर ओपन. तो अगर तुम्हें कोई यूज कर रहा है तो डोंट गेट इनटू इट. पता लग जाता है कौन तुम्हें पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं. बट आई एम वेरी श्योर पीपल मस्ट बी अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज ऑफ योर मनी, योर फैंसी कार्स एंड स्पेशली हमारे पंजाब में तो गाने भी बड़े फेमस है. पहले जैगुआर ले ले, फिर जितना मर्जी प्यार ले ले. यू हैव अ जैगुआर आल्सो. यू हैव ऑडी, BMW, जैगुआर, रेंज रोवर, ऑल दीज कार्स, राइट? हाँ, मतलब my dad and like me also we are fond of cars. So he's being very diplomatic. नहीं, हाँ, we have Range Rover, we have Jaguar also. So does it happen to you that a lot of people give you attention, especially girls, give you a lot of attention? Girls attention, I don't think so. I am single. तो अभी अनाउंस कर देता हूँ. All the single pretty ladies, you can contact Himanshu. Any day. Always there to help. Always there to help. I honestly feel that your life is very difficult, at least for me to handle it. I am somebody who is, I tell it to my students that I trust you. जिससे अभी मैं काम करता हूँ मैं उसको बोलता हूँ I trust you, and I trust everyone. Thankfully, I don't have that case where people are after my money and I don't even have that much of it. ठीक है, but जितने भी लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं they connect it because they like Fiyanshu Sharma. That's the main thing. That's what I'm saying. But in your case, it is very difficult because मुझे लगता है कि if I'm at your case ना, I will be thinking यार, is this guy really sweet or if this guy is actually being nice to me because of my status? So I think I have a lot of friends, but जो लोग, the people who mean to me, I can count them on my fingers. Okay. तो पता लग जाता है यार कौन कैसा है क्या है. जब हमने बताया अपनी ऑडियंस को कि there is a good boy millionaire coming on Practical Gyan, so we asked them that if there is anything that you would like to ask that millionaire. So we have a lot of questions for you, right? So if you'll allow me, I can ask you all those questions. Definitely shoot them. How hectic is to maintain that empire? So as I told you earlier, you are always looking for expansion in your business. So expansion के साथ there are so many things, everything comes with a price. Social life की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं. मतलब कुछ भी प्लान करना है, you have to look for so many things. And even हम भी कितनी बार प्लान करते हैं कहीं कुछ करने का तो नहीं हो पाता, कभी मैं बिजी हो गया कुछ है. तो अब क्या है, जैसे I stay in Ludhiana and my business in Chandigarh या other parts of Punjab. तो उसमें क्या होता है कि ट्रैवलिंग सारा दिन करते रहो, कभी मतलब रोज की 3-4 घंटे की तो ट्रैवलिंग होती है. People who crib about that they have to travel for their job and house to office every day, just take inspiration from this guy. He travels every day approximately 3 to 4 hours. मैंने इसको हर रोज ट्रैवल करते हुए देखा है. Hats off to him. लुधियाना से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पंजाब and the other parts of Punjab also. Every day you travel. Every day I have to. That is how you become a millionaire. Trust me, people who give up, who do not feel like hustling this much na, I think that's the secret, that you hustle a lot. You hustle throughout your life, I think. मतलब ठीक है, ये न्यू टर्म है, मिलेनियल टर्म, हसलर. तो चलता रहना चाहिए ये तो. मतलब you are learning all. You're happy with all this hecticness? I'm very happy. The next question is, okay, this is a little personal. Are you actually happy where you are? I'm very much comfortable. I am happy. Okay. But not satisfied. You're not satisfied? I'm not satisfied because expansion तो चाहिए. अच्छा, अभी भी चाहिए? Always, throughout my life. Because मेरा next question ना ये होने वाला था, but अब आपने जवाब दे दिया, so I don't think that there is any point of asking this. That even after having so much of money, why do you feel like working? तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कि यार नहीं ठीक है, जब आप सेटिस्फाई हो गए तो अगर तुमने काम करना बंद कर दिया तो आज अंबानी ना होता, बिल गेट्स ना होता. अगर लोग यही सोचते कि हाँ यार थोड़ा मटेरियलिस्टिक होते कि हाँ यार ये ले लिया, तो सारे लोग काफ़ी जल्दी गिव अप कर देते. मैं भी बहुत पहले का गिव अप, मैं बिजनेस में आता ही ना. मैं कहता है ठीक है, पापा ने कमाया, उसको आराम से खाते हैं. और मे भी शायद तुम 10 करोड़ पे भी बस हो जाते फिर. एनीथिंग. और 1 करोड़. हाँ, मतलब जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एक 1 year was a big thing. And even it is still is today. It is still a big thing. बट उस टाइम पे लग रहा था यार ये तो सही कर लिया, यहाँ पे पहुंच गए. एक बार हमारी पहले भी बात हो रही थी that you are interested in philanthropy also.
So, can we give a shout out to all the young entrepreneurs that if they want any kind of help from you or advice, they can contact you somewhere? Exactly. If you are comfortable. Yeah, any day. You can just give them your email ID. That हाँ would मतलब I think we'll mention email ID and my handles on the bio. अच्छा. तो उसमें क्या है, people can call me anytime. सो चार्जिंग पूल की बात कर रहे थे. चार्जिंग पूल में एक बहुत अच्छा सी कंपनी है. इट्स नॉट वेरी ओल्ड, इट्स 1.5 year old कंपनी ओनली. उसका नाम मार्केटिंग हुक है. तो उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तुम? I would love to. जहाँ पे मुझे बड़ी मार्केट देखे, I love to. मेरे को जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं वहाँ पे कर लेता हूँ कुछ ना कुछ. बट एनी हाउ आई वांट सीरियस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 years down the line? Expanding all over the world in next 10 years. Do you have a plan of going international? I do have a plan and we are Okay. already working on it. Otherwise, I think everyone has big plans. You must be having a plan like 10 साल में ये हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा. सबके अपने अपने plans होते हैं. But what matter is you are having a comfortable, happy family after 10 years or whatever. So I think that's the most important thing in your life. कि तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, comfortable life है. बिजनेस क्या है, कहाँ पहुँचे हो, कौन से लेवल पे हो, वो भी मैटर करता है. बट आई थिंक फैमिली इज द फर्स्ट thing you should keep in So mind. 10 years down the line you see your business going internationally Yeah. and then having a sweet, Comfortable, happy family. अच्छा, अरे बड़ा नाइस गाय. दैट इज तभी तो इसका नाम मैंने गुड बॉय मिलियनेयर रखा हुआ है. ही इज वेरी स्वीट. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग टू प्रैक्टिकल ज्ञान. My pleasure. I hope you had a good time here. I had a good time. Thank you for having me here. And thank you so much for listening to Practical Gyan.